और जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18+। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, तो ज़रा बच्चे आगे पीछे कर दें। अगर गाड़ी में सुन रहे हैं तो पॉज कर दें या फॉरवर्ड कर दें अगले सवाल के लिए। सब्जेक्ट है हस्बैंड इज आस्किंग मी टू परफॉर्म unnatural things in bed. Salam Junaid bhai, I've been following your content for years. I never thought I'd write something like this. I'm changing a few details to contain my identity. I'm a 21-year-old woman married for about a year and a half now. My husband is सेम एज एज मी। अच्छा, अब आपने ज़ाहिर है चीज़ें तो अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए ऊपर नीचे की हैं। अब ये 21 ही है या इसको भी चेंज किया, ये मुझे नहीं पता, बिकॉज पर्सपेक्टिव के लिए ज़रूरी है। एनीवे, माई हस्बैंड इज द सेम एज एज मी। बिफोर मैरिज आई हैड नो सेक्शुअल एक्सपीरियंस, नो आइडिया ऑफ वॉट टू एक्सपेक्ट, जस्ट वॉट लिटिल I had learned from books, the internet, and whatever culture allowed me to know. Since the beginning of our marriage, my husband has demanded things that I can only describe as extreme. He insists on acts that leave me physically hurt and emotionally disturbed. There have been times I nearly had to be hospitalized. He pressures me into unnatural sex even when I say no. Many a times he doesn't even take permission and just does it without asking me. He regularly demands oral sex, something that physically makes me gag and vomit, but he doesn't stop. I've even tried to use the excuse of being on my periods to avoid intimacy, but his response was, कोई बात नहीं, हम नीचे टॉवल पिछा लेंगे. He doesn't understand that during periods it hurts even more on certain days, of course. After weeks of pushing and convincing, I gave in. Since then, for the past 2 days, I have been bleeding every time I use the toilet. I'm scared, I am ashamed, I feel like I have lost control over my own body. When I tell him something feels wrong, he says, ये तो normal है, सभी ऐसे करते हैं, तुम्हें आदत हो जाएगी. But I don't think this is normal. I don't think this is love. I don't think this is how marriage is supposed to feel. I'm trying every excuse of falling sick and I skip going to the bedroom till he is asleep as I keep myself busy in house cleaning. Imagine अब उनको रात के 11:30 बर्तन धोने पड़ रहे हैं because she doesn't want to be intimate with her husband. What a life, man. So sad. I don't know why I'm writing this to you. Maybe you can tell me a solution to bring normalcy to my husband's mind, or maybe not. I expect that you've always spoken up about the ugly truths people are too afraid to address. Maybe I just needed someone to read it and understand. Maybe I just needed to tell the truth, even if it's anonymous. Thank you for reading. If you do, that alone would mean more than you know. Sincerely, cannot reveal my name. So, ये जैसा कि आपने देखा, ये एक सिचुएशन है, अज्यूमिंग ये पाकिस्तान की ही है, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है और ज़ाहिर है आइडेंटिटी छुपाई है, लेकिन ईमेल में लिखा है कि 21 साल के दोनों मियाँ बीवी हैं और हस्बैंड जो हैं अननेचुरल सेक्स यानी कि एनल सेक्स की तरफ उनको फोर्स करते हैं. एंड ही ऑल्सो फोर्सेस हर टूवर्ड्स ओरल सेक्स, जिससे वो कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज एज शी सेड कि कोई प्रायर इतना एक्सपीरियंस नहीं था और जो भी कुछ इंटरनेट या किताबों में पढ़ा उतनी ही नॉलेज थी, राइट? तो अब इससे कैसे निकला जाए? अब निकला कैसे जाए? देखिए, दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज़ नो सेक्स एजुकेशन. अब सेक्स एजुकेशन को लोग समझते हैं कि सेक्स करना सिखाया जाता है. क्या नहीं होना चाहिए वो ज़्यादा से उस पर ज़्यादा फोकस होता है. क्या नहीं होना चाहिए या सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें. लेकिन बस सेक्स, इस पर मैं आपको एक असली वाक़या सुनाता हूँ, और ये मैंने शायद पहले एक एपिसोड पे सुना है, बहुत पहले सुनाया होगा. हमारे एक दोस्त हैं, क्रिश्चियन है, ठीक है, और उनके एक दोस्त हैं, लेट से उनका नाम जस्टिन है, राइट? तो जस्टिन जो हैं वो एबनॉर्मल थे. अब जस्ट बिकॉज वो एबनॉर्मल है डजंट मीन क्योंकि उनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ तो बस किसी से भी करा दो, बस शादी तो होनी चाहिए, राइट? अब जस्टिन के फादर ने मेरे दोस्त को बोला और उनके दोस्तों को खड़े होके, मतलब कि वो कम्युनिटी में है तो दोस्तों को बुला लिया, बेटा आओ ज़रा बात करनी है. फिर बोला, बेटा आपको जस्टिन की हालत तो पता है. अच्छा, जस्टिन वॉज प्रॉपरली एबनॉर्मल, ठीक है, तो आपको पता है, उसको तो नहीं पता. अब शादी है तो आप लोग थोड़ा इसको समझ रहे हो ना, ज़रा समझा देना. अंकल ने कोडेड वर्ड्स में बोला, ठीक है. अच्छा, तो इन्होंने दोस्तों ने बोला, यार एक काम करते हैं, पोर्न लेकर आते हैं और इसको दिखाते हैं कि ऐसे करना है. अच्छा, थोड़ा लाउड बोलो तो वो ज़रा सुन लेता था, एक्नॉलेज कर लेता था, बट लाइक पूरे बिहेवियर में
अब मैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा, सो आई एम जस्ट गोना अवॉइड। सो अब नॉर्मल आप समझ गए होंगे जिस तरह हमारे आपको अक्सर नज़र आते हैं लोग। तो उसको पोर्न दिखाई। अब पोर्न में जो है सैडली देयर वाज एन एनल सेक्स का सीन। अब वो देख रहा है एंड ही इज़ लाइक ओके ये करना है। तो वो ये नॉलेज लेके चला गया और जब शादी हुई, एंड इट साउंड्स वेरी रिडिकुलस बट इट एक्चुअली हैपेंड। माई फ्रेंड हैज़ नो रीज़न टू लाई टू मी अबाउट सच अ स्टोरी। तो वो जब हुआ, जब शादी हुई, कमरे में गया तो 10 मिनट बाद वो चीखती हुई बाहर आई। तो बाप भी बाहर आ गया, वही अंकल जिन्होंने बेटों को बोला था, दोस्तों को बोला था बेटों को कि बेटा इसको समझा देना। तो उसने, लड़की ने, बेचारी ने कोडेड लैंग्वेज में बोला कि ये गलत तरीके से कर रहा है जो भी कर रहा है। तो फिर उन्होंने मेरे दोस्त समेत सारे लड़कों को गालियां दी कि तुमने क्या दिखा दिया इसको, ये तो गलत साइड पे जा रहा है। तो फिर तब से उस कम्युनिटी में जोक बन गया कि भाई जस्टिन नहीं बनना, ज़िंदगी में सब करना है, जस्टिन नहीं बनना, राइट। तो गलत एजुकेशन उसको दी, उसका गलत रिजल्ट। अब ये जो सिचुएशन है, दिस इज़ क्लियरली पोर्न ऑब्सेशन जो पोर्न में देखा है। अब देखे पोर्न, दिस इज़ व्हाट इट डज, दिस इज़ हाउ इट डैमेजेस यू, योर ब्रेन। एक वक्त के बाद आपको रेगुलर चीज़ें बोरिंग लगती हैं, फिर आप थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल बढ़ाते हो, थोड़ा नॉच अप करते हो। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर ड्रग, राइट। आप अगर बियर पीते हो तो पहले दिन अगर आपको पहली वाली चढ़ गई, तो जब आप थोड़ा रेगुलर हो गए, फिर 2 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर द नंबर गोज ऑन। कुछ लोगों को 9 बियर के कैन पी लेते हैं, कुछ नहीं होता, राइट। नॉच अप होता है। सिमिलरली ये भी एक ड्रग है, डोपामीन रश है। आप रोज़ एक ही जैसा देखेंगे सॉफ्ट कोर, आपको नहीं समझ आएगा। फिर एक पॉइंट का बोलेंगे थोड़ा हार्ड वाला नॉच अप करते हैं, फिर उसमें जो है थोड़ा आप और नॉच अप करेंगे, थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल टू द पॉइंट के इट गेट्स बिजार, ठीक है। तो इधर वही सीन है, देख देख के अब वही चीज़, क्योंकि उसके अलावा यू कांट गेट टर्न ऑन। फिर उसके बाद रेगुलर सेक्स मीन्स नथिंग टू यू। फिर उसके बाद सो आई डोंट वांट टू नेम पोर्न कंपनीज, फिर सारे लोग बैठ के देखेंगे ना कि मैंने कौन सी वाली रिकमेंड की। सो देर आर सम दैट आर इंटीमेट, सेक्स उसमें भी हो रहा है बट देर मोर इंटीमेट। अच्छा, नाउ देर आर सम चैनल्स दैट आर मेड फ्रॉम अ गर्ल्स परस्पेक्टिव। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ख़वातीन के हिसाब से बनाए हुए, उसकी डायरेक्टर भी औरतें होती हैं और उसमें नेविगेशन भी ज़्यादातर ख़वातीन कर रही होती हैं। सो इट इज़ फ्रॉम अ फीमेल परस्पेक्टिव। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी कि अब हमें, ज़ाहिर हमने सारी ज़िंदगी एक ही तरह का देखा ना, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड अगले को क्या समझ आ रहा है या अगले को क्या चीज़ें चाहिए। अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, लोगों के डिफरेंट टर्न ऑन होते हैं, राइट, बट एटलीस्ट यू कैन गेट सम बेसिक्स आउट ऑफ इट। तो सो जब आप एक नॉर्मल चीज़ों से आप परे हो जाते हैं, फिर आपको वो चीज़ टर्न ऑन ही नहीं करती ना, फिर आपको समझ ही वो चीज़ आती है एक्सट्रीम लेवल वाली। फिर वही चीज़ें आप घर में अप्लाई करते हो, क्योंकि आप रेगुलर से आपका कुछ होता ही नहीं है हिसाब किताब। तो सिमिलरली इन दिस केस, बिकॉज इतना पोर्न देख लिया है भाई ने, एंड दिस इज़ एक्चुअली मैरिटल रेप। इसी को मैरिटल रेप कहते हैं कि जहाँ पे कंसेंट ना हो। मगर कंसेंट नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है ना पाकिस्तान में। तो और पाकिस्तान में मैरिटल रेप को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता, लेट अलोन लेजिस्लेशन, लेट अलोन उसकी कानून साजी, लेट अलोन उसका ड्यू प्रोसेस। वो तो बहुत बात की बात है, मानते ही नहीं है। तो कहते बीवी का हक है, सॉरी शौहर का हक है, और जो बीवियां ना कहती हैं उनको फरिश्ते लानत देते हैं। और ये किसी ने मेरी शक्ल पे ये मीम बनाया हुआ है, बाय द वे, देखा ही होगा आपने, कि भाई औरत की तबीयत ख़राब हो सकती है, औरत को जैसे बोला कि पीरियड्स में कह रहे चादर बिछा लेंगे। यार व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस, हाउ डिस्गस्टिंग आर यू। मतलब इसमें तो करीब भी नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा कि औरत अछूत हो जाती है, बट लाइक यू आपको उन दिनों ज़रा परे रहना पड़ता है। अच्छा, इसमें फिर मैंने एक एक्सपीरियंस किया था, एक जूइश सिनागॉग है एम्स्टर्डम में, क्वाइट ओल्ड था, हिस्टोरिकल था, और मैं चूँकि ढूंढ रहा था हिस्टोरिकल और क्या क्या चीज़ें, तो वो सिनागॉग नज़र आया तो मैं बेगम के साथ चला गया। बाय द वे, कहना नहीं चाहिए भाई, उन लोगों की इबादत की जगह है, रिस्पेक्ट तो हम सबकी करते हैं, ज़ाहिर है अगला गलत मैसेज निकाल के गलत हरकतें करे तो वो सब्जेक्टिव उस पे है, बंदे पे, मैसेज पे मसला नहीं है। मगर यार वाइब एक चीज़ होती है, राइट। यार उधर बहुत नेगेटिव वाइब थी फॉर सम रीज़न, और उसमें कबाला, यार ये तो मानते हैं कि हम जादू करते हैं उसके। अच्छा, जो लोग नेदरलैंड्स में रहते हैं या करीब करीब रहते हैं, मैं आप इफ़ यू वांट मैं लगा दूंगा, इनफैक्ट ढूंढ अगर मिल गया तो स्क्रीन पे आ जाएगा।
तो फिर वहाँ पे वो दे आर एडमिटिंग, उसका एक अंडरग्राउंड सेक्शन था बाय द वे, जो वहाँ का वो था गेट कीपर नहीं, लाइक जो टिकट वगैरह चेक कर रहा था, उसने पूछा मुझसे मेरी वाइफ से, वेयर आर यू गाइस फ्रॉम, तो शी सेड आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, एंड ऑफ कोर्स ही लुक्ड एट अस लाइक फक यू, वेयर आर यू फ्रॉम, सो आई सेड पाकिस्तान। अरे भाई उसके बाद वो बंदा जैसे हॉरर मूवीज़ में नहीं, आप किसी भी रूम में जाओ सामने से आ रहा होता है, ही फकिंग चेस्ड अस थ्रू आउट, और वो उसको अनकंफर्टेबल कि ये लोग आए क्यों हैं। अच्छा, इट वॉज हेविली गार्डेड टू द पॉइंट के 2 शीशे के दरवाजे हैं और उसके बाद है, सो पहला शीशे का दरवाज़ा खुलेगा, आप बीच में जाओगे, जब तक ये बंद नहीं होगा दूसरा नहीं खुलेगा। यार कौन सी म्यूज़ियम में इतनी, ठीक है अगर वो महंगे आर्टिफैक्ट्स हैं या जो है आपका लूव म्यूज़ियम है या रिक्स म्यूज़ियम इज़ अमेजिंग बाय द वे, जहाँ पे रफ़ाएल के और बड़े बड़े, अरे रफ़ाएल जहाज़ वाला नहीं भाई, आर्टिस्ट माइकल एंजेलो की चीज़ें रखी हुई हैं, डाविंची की हैं, तो समझ आता है इतनी सिक्योरिटी। एनीवे, सो उसके अंडरग्राउंड लेवल पे देयर वाज एन एंटायर रूम डेडिकेटेड टू कबाला, जो इनका ब्लैक मैजिक होता है, और उस पर तस्वीरें थी पीपल हु प्रैक्टिस कबाला, मैडोना, बुश की फैमिली, बीटल्स। अच्छा, फिर सिम्बॉलिज्म हिडन, ये जो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, अरे भाई दे वर फकिंग एडमिटिंग इट ओवर देयर। तो ज्यूइश सिम्बॉलिज्म, ज्यूइश सिम्बॉलिज्म कह रहा हूँ, सैटेनिक सिम्बॉलिज्म। सो बीटल्स का एक एल्बम है, एल्बम का नाम क्या है यार, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो उसमें मार्क किया हुआ है इन्होंने, तो फकिंग एडमिटिंग इट शेमलेसली। एनीवे, तो वहाँ के जो टूर था, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो वहाँ सिनागॉग के कोने में एक क्वार्टर्स टाइप के बने हुए थे, ठीक है। अच्छा, वी हैड दोज एयरफोन्स होते हैं, उसमें आप QR कोड स्कैन करो तो वो ऑडियो चलती है कि जी इसका मीनिंग ये है, इस कमरे का मीनिंग ये है। सो व्हेन वी वेंट टू दोस क्वार्टर्स दे सेड कि यहाँ पे इम्प्योर औरतों को लाया जाता था। आई लव इट, एवरी रिलीजन इज सुपर मिसोजिनिस्टिक। तो उसमें था भाई इम्प्योर औरतें, यानी वो औरतें जिनको पीरियड्स होते हैं तो घर से निकाल देते थे कि भाई 7 दिन अब जब तक तेरा ख़त्म नहीं हो रहा तूने क्वार्टर में रहना है। अच्छा, फिर वहाँ की उनकी नन्स अगर आप कह लें, या उनकी आया कह लें, या फिर जो भी केयर टेकर होती थी, तो वो औरतों का ख्याल रखती थी, एंड देन लाइक दे वुड कीप देम कि बस तुमने यहाँ रहना है, उनको मॉनिटर करती थी। और फिर जब पीरियड्स ख़त्म होते थे तो फिर नहला धुला के तैयार करके कि जा शौहर की खिदमत कर जाके। तो मतलब भाई ये लेवल था कि पीरियड है तो घर पे भी नहीं रहना, या तुम चादर बिछा रहे हो नीचे, अजीब आदमी हो। तो सया वो ये मुझे एक बात अचानक याद आ गई तो मैंने आपके साथ शेयर की। एनीवे, सो दिस इज़ क्लियरली अ केस ऑफ मैरिटल रेप, एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप मुसलमान हैं तो इस सिंपल, इसमें मतलब 2 राय ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हनफी, मालिकी, जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें तो ये बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ChatGPT पे खुला खुला लिखा हुआ है, ठीक है। हनफी, शाफी, मलकी और हम्बली, चारों स्कूल ऑफ थॉट में ये बिल्कुल हराम है, निकाह टूट जाता है। जो शिया जाफरी स्कूल ऑफ थॉट है, वहाँ पे इसको मकरू समझा जाता है, नॉट हराम बट मकरू। और कहीं कहीं ये कहा जाता है कि अगर कंसेंट है बीवी का तो कर ले, लेकिन इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स बुरा ही समझा जाता है। नाउ मैं कोई टिकट नहीं दे रहा कि जाके करो, ये आप खुद ढूंढ लें, इंटरनेट पे हर जगह ढूंढ लें, ये चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड हैं, ठीक है। तो अक्रॉस इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एनल सेक्स इज एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन और स्ट्रांगली डिस्करेज्ड, ठीक है। तो इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। तो अगर आप तो सुननी है तो आपको तो निकाह ही ख़त्म हो गया। गलत कह रहा हूँ मैं भाई कि नहीं कह रहा, जो लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप, अच्छा फिर दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर आपका स्फिंक्टर मसल जो है रप्चर हुआ है, जिसकी वजह से आपको इतनी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड इफ़ यू आर ब्लीडिंग एवरी टाइम यू आर यूजिंग टॉयलेट, दैट इज़, इससे मुझे वो सीन याद आता है, द काइट रनर। अगेन आई एम नॉट गोना स्पॉइल द मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो बहुत खूबसूरत मूवी है, ज़रूर देखिएगा। इट इज़ अबाउट अ चाइल्ड हु गेट्स रेप्ड, और उसका एक आखिरी का सीन है वो बहुत डिस्टर्बिंग है, या इट्स वेरी वेरी सैड। तो भाई दिस इज़, किसी भी नॉर्मल मुआशरे में ये सीधा सीधा पुलिस केस है, क्योंकि ये रेप है। मगर चूंकि आप अनफॉर्चुनेटली गालिबन यहाँ रहती हैं तो यहाँ तो इसको तो मानते ही नहीं है। अब ये है कि आप इस पे सीधा सीधा फतवा ले सकती हैं किसी भी आलिम के पास जाके कि भाई ये मेरे साथ होता है और ये
गलत रास्ते से ये सारे मामला चल रहे हैं, तो इसमें तो मतलब कोई दो राय ही नहीं है, आप ही का साथ दिया जाएगा। अब मसला ये है कि फिर अगर आपकी अलहदगी होती है, जो भी होता है, अब इसमें अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई सम हाउ ही विल बी रिहैबिलिटेटेड, आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक सो। क्लियरली इफ़ दिस इज़ हिज किंक, तो किंक जो है कभी भी नीचे नहीं आती, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। सो आज ये है, कल को आई डोंट नो उनके और क्या आइडियाज़ हों, क्योंकि फिर आफ्टर अ वाइल दिस विल बी बोरिंग फॉर हिम। फिर जब ये बोरिंग होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, एंड इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ सेक्शुअल क्राइम। सेक्शुअल क्राइम तो इतना प्रेवलेंट है, यहाँ बात ही नहीं की जाती, उसके ऊपर बात ही नहीं की जाती। एक काम ज़रूर कीजिएगा, डू नॉट रिप्रोड्यूस विद दिस पर्सन। मतलब जिस इंसान का दिमाग इतना भी सेन नहीं है कि वो आपको पीरियड्स में भी आपकी ज़िंदगी नहीं मतलब छोड़ रहा, तो ऐसे शख्स के साथ भाई औलाद तो ना ही कीजिएगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से, सिस्टर से, विमेन इन द फैमिली, पहले उनसे आप डिस्कस करें और बोलें भाई ये सिचुएशन है एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कल को जाहिर है आप पेन की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से जब आप रेजिस्ट करेंगी, और एक इंसान या एक मर्द जो हविस का प्यासा है, जिस देखें इंसान मर्द की बॉडी में ना दो दिमाग होते हैं, लेकिन इतना ही ब्लड सप्लाई होती है कि एक वक्त में एक दिमाग चलता है, एक ये वाला हेड है, एक दूसरा, समझ रहे हैं। तो जब दूसरा हेड फंक्शनिंग होता है ना, तो ये तो काम नहीं करता, विच इज़ वाई मैन मेक स्टूपिड मिस्टेक्स एंड दे रिस्क देयर लाइफ सो मच, राइट, क्योंकि वो हॉर्न नहीं होते, दिमाग से सोच नहीं रहे होते, कहीं और से सोच रहे होते हैं। सो जब इंसान कहीं और से सोच रहा हो और आप उसकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर रही हो, तो और आप रेजिस्ट करें, तो इट कैन टर्न वायलेंट, इट कैन टर्न इनटू डोमेस्टिक। खैर दिस इज़ नॉट लेस देन डोमेस्टिक वायलेंस, क्लियरली रेप, मगर फिर हाथापाई भी हो सकती है, क्योंकि फिर वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि ये तो मेरा राइट है, ठीक है, वो इस तरह से आएगा ये तो मेरा राइट है, तुम इस तरह मना नहीं कर सकती, और मना का कोई सीन नहीं है, ये मेरा हक है। और खैर, सो बहन मैं आपको यही बोलूँगा बेटा कि आप पहले डो नॉट रिप्रोड्यूस, दूसरा प्लीज़ डिस्कस विद योर फैमिली एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। बाकी अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। एंड अब इसमें मैं क्या बोलूँ, अब इसमें आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं किसी को कि भाई शादी से पहले डिस्कस कर लें प्रेफरेंसेस। अगर कोई लड़की पूछेगी कि भाई क्या सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, अगला तो बोलेगा ये तो भाई रांडी निकली कोई, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे तो ऐसी लेबल यूज़ होते हैं इस तरह की औरत, मतलब अगर औरत कोई सवाल करे इस तरह का, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ कि भाई आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप सीधे साधे सादा खुशबू हैं या आप ज़रूर राजानी हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि फिर आपने पूरी एक्सरसाइज की, शादी ये वो, खाना आबादी, दिस दैट ये वो, फिर एंड में पता चला जी ये तो हम किस गली जा रहे हैं, आतिफ असलम हैं, इनकी तो गली ही अलग है। अब वही वाली बात ना, हाउ डू यू हैव these conversations। मे बी कराची, लाहौर में जहाँ ज़्यादा एक्सपोजर है, वहाँ एक सर्टन इकोनॉमिक स्ट्राटा में ये डिस्कशंस हो सकती हैं, बट लाइक थिंक अबाउट प्लेस लाइक समवेयर एल्स, तो वहाँ तो बात ही नहीं करवाते, लेट अलोन ये सवाल तो बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं कराते। स्टेज पे तो पहली बार मिलते हैं इतनी शादियों में। सो या मैन, दिस इज़ लाइक रियली रियली मेस्ड अप। बेटा अपना ख्याल रखो, ठीक है, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।